myself Dr. Soumya Tiwari, and today I am very happy on the occasion of Ganesh Utsav that we are announcing and we are starting our new series comprising of short and both long question and answers, which will help our undergraduates as well as our postgraduates. The questions which are discussed here, they are typical in their own way and they are also unique in their own way. So please do try to understand those questions, as they will be really very helpful. And so for helping me out, and as the name of the channel suggests, the PSM couple, from today Dr. Mayank Rahul is going to take over for the question answer series. So do encourage us by your likes, by your shares, and also please do not forget to subscribe our channel. Thank you, have a nice day and happy Ganesh Chaturthi to all our viewers. Thank you. Hello and welcome. Myself Dr. Mayank, wishing you happy Ganesh Chaturthi. Today we are starting our new session on the question answer series. So without any delay, let's begin. So our today's first question is about accreditation. What is accreditation? आपने पहले भी कहीं सुना होगा accreditation के बारे में. किसी संस्थान को, किसी भी reputation जगह, places को कोई भी nomination मिलता है, जैसे कि ISO certification या NABH, NABL accreditation जो मिलता है, वो कैसे मिलता है और क्या होता है वो. So let's begin with the accreditation part. It is a formal process by which a recognized body, NGO, assess and recognize healthcare organization that meets predetermined standards. The principal components that we are discussing here is usually based on written and published standards, nothing new for that. Conducted by the professional peers, जो भी जिस फील्ड में प्रोफेशन में महारत हासिल है इनको, वही लोग ये प्रोफेशनल बॉडी बनाते हैं और वो कंडक्ट करते हैं. कुछ नया नहीं करते. जो इनके पास रिटन एंड पब्लिश स्टैंडर्ड्स रहता है पहले से, जो मापदंड तैयार कर रखते हैं, ये उन पे काम करते हैं. एंड द प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेड बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस. ये स्वेच्छापूर्ण कार्य होता है. द एम इज टू इंकरेज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड इट्स यूजुअली अ वॉलंटरी प्रोसेस. इसमें आपको इनवॉलंटरी कुछ भी नहीं है. जब तक आप आगे से परस्यू नहीं करते हैं तब तक आपको कुछ नहीं मिलता है. तो भैया पर्पस क्या, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डूइंग एक्रेडिटेशन, राइट? मेन पर्पस इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, इम्प्रूव इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, प्रोवाइड एजुकेशन, strengthening the public confidence, accountability to professional bodies is the last. ना एक एक करके हम समझ लेते हैं ये है क्या पर्पस. वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, जो कि वेरी मैंडेटरी थिंग है आज के डेट में. दूसरा है इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज बिटवीन द स्टाफ्स एंड ऑल द बॉडी व्हाट यू आर रनिंग थ्रू. आपके पास 10 से 20 कर्मचारी हैं या 2 या 3 कर्मचारी हैं, मगर आपकी ट्यूनिंग, आपकी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडिंग फैसिलिटी कैसी है, ये मैनेज करना होता है. तीसरा, व्हेन द नंबर ऑफ पीपल विल बी अप्रोचिंग यू, but obvious the thing is that the cost reduction will be there, so it helps in imparting, reducing the healthcare cost. Fourth was provide education. When you educate your own population, own target group, own focus group, they reluctantly reflects what you are going for. Okay, and while doing this, you strengthen the public confidence. When the confidence is boosted up, they will be falling for you, they will be coming towards you. Now we are talking about the procedure, how it is done. ये होता कैसे है? The first thing is setting and publication of standards and elements of performance. आप काम कैसा कर रहे हैं मार्केट में, आपका रेपुटेशन कैसा है, इस पे काफी ज्यादा निर्भर करता है आपका एक्रेडिटेशन. ओके, सो standard statement that defines the performance, exceptions and structure or the process that must be in place for an order or of an organization to provide safe, high quality care, treatment and services. हमने बात किया था यहाँ पे ऊपर में एलिमेंट्स के बारे में. एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? It's a rational statement that provides background justification
ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टैंडर्ड। जो भी आपका स्टैंडर्ड सेट है, जो भी जस्टिफाइड क्राइटेरिया है, जो कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट रखना है, उसके रैशनल के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। यू नीड टू अप्लाई। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होता है ताकि आप रजिस्टर करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ पाए। Thereby they have some limited or calculated fees for reviewing your institution, your school, your college, anything you are dealing with. Either it can be our restaurant, but right now we are talking about a medical field. So हम आपके छोटे स्टेप से लेके बड़े स्टेप तक बात करेंगे। छोटी सी क्लिनिक होगी, आपकी डिस्पेंसरी होगा, पॉलीक्लिनिक होगी, नर्सरीज होंगे, डे केयर होगा, हॉस्पिटल होगा, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होगा, ट्रॉमा सेंटर होगा। ये लोग अप्लाई करेंगे एक्रेडिटेशन के लिए। तो इनको क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे करना है? तो पहला जो हम बात कर चुके हैं, सेटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, दैट इज एप्लीकेशन। थर्ड वाज द पेमेंट ऑफ फीस। जो भी स्टिपुलेटेड फीस रखी गई है वो आपको भरनी होगी। आपके पास प्री सर्वे एक्टिविटी का रिक्विजिट आ जाएगा। जब वो आएंगे तो उनको क्या क्या देखना है, क्या क्या मिलना चाहिए। एंड देन कम्स द मेन थिंग, सर्वे एक्टिविटी। द टीम कम्स टू योर ओन प्लेस, दे विल डू सर्वे ओवर देयर, दे विल फाइंड आउट ऑल दोस थिंग जो उन्होंने अपने रिक्विजिट सर्वे बुक में पूछा था। एंड इफ यू वांना टैली ऑल दोस थिंग, देन द रीसर्वे एक्टिविटी अकर्स। रीसर्वे एक्टिविटी क्या है? जो सर्वेयर आए हैं, जिन्होंने आपका रिपोर्ट राइटिंग तैयार किया है, वो उस पर एनालाइज करेंगे एंड आगे के प्रोसीजर के लिए जो फर्दर एक्टिविटी है उसको हेल्प आउट करने के लिए वो लोग एक एक्रेडिटेशन रिपोर्ट तैयार करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्रेडिटेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट इज बेसिकली ऑल दोस प्रीरिक्विजिट प्लस एंड माइनस व्हाट यू हैड एंड व्हाट यू हैव नॉट इज मेंशन्ड ओवर देयर। आप क्वालिफाई कर गए तो आपको अवार्ड ऑफ एक्रेडिटेशन दिया जाता है, नहीं तो रीसर्वे होगा आपका आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। सो नेक्स्ट वाज द अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेशन पॉइंट एंड लास्ट इज रीसर्वे आफ्टर द फिक्स पीरियड। ओके, नाउ ओवरऑल हमने सब कुछ पढ़ा, देखा। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? व्हाट डज एक्रेडिटेशन गिव यू एडवांटेज? व्हाट इज द ब्राउनी पॉइंट्स और द बोनस पॉइंट व्हाइल यू गो फॉर एक्रेडिटेशन? द थिंग इज दैट बेनिफिट टू द हॉस्पिटल, improves delivery of medical care. First thing. Second is the benefit to employees, education, training and development of professional staff. It provides leadership, increases satisfaction, employee safety and security is determined there also. It promotes teamwork. एक हौसला अफजाई होती है, पूरी टीम बनती है आपकी। जब आपको एक टीम लीडर मिलता है जो कि इन सबको इंश्योर करता है उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, right? Are you clear? Then it comes the benefit to the patient, provide quality and medical care. Patients' rights are protected and respected. क्योंकि जो prerequisite forms होते हैं बड़े hospitals में, they clearly mention about these things which you need to respect for the further belongings. Okay? Increases patients' involvement in medical care decisions. Focuses on patient safety first. ऐसा नहीं है पेशेंट आया और डरा हुआ है, क्या होगा नहीं होगा। यू नीड टू ओपन अप योरसेल्फ, यू नीड टू क्लियरिफाई ऑल दोस वर्ड्स, ऑल दोस थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग विद देम। सो दीज आर द थिंग व्हिच इज सिक्योर्ड बाय द पेशेंट। पेशेंट रिलैक्स इन द हॉस्पिटल, हाँ इट इज एक्रेडिटेड, इट इज NABH और NABL accredited, ISO certified, so he will feel relaxed. Now जब हम एक्रेडिटेशन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा प्राइम टारगेट है अपना ओन कंट्री। We are talking about the India part. What is the accreditation system in India basically? How do we provide accreditation in our India, right? So first and foremost, kindly jot this point. This is very important. We have QCI, Accreditation Board under Quality Council of India. बहुत जगह आप QCI accredited भी देखेंगे लिखा हुआ। दूसरी जगह पे NABL accredited होता है, National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories। ये क्या होता है भैया? लेबोरेटरीज के लिए बेसिकली डिफाइंड होता है ये पार्ट, जहाँ पे आपको करना होता है रजिस्टर अपने लैब को। वहाँ आपके सारे ट्रीट्स एंड बिट्स देखे जाते हैं, सारे इफ एंड बट्स को क्लियर किया जाता है। जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जो प्राइमरी प्रोटोकॉल है पेशेंट सेफ्टी के लिए, वो भी फॉलो होता है।
Next we are talking is NABH, National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Provider, that is NABH. Okay, now एक ब्रीफ में हम बात करें, ये 3 पार्ट है मेनली जो इंडिया में डील करते हैं एक्रेडिटेशन के लिए, फॉर द इंस्टीट्यूशनल सेटअप, फॉर द हॉस्पिटल सेटअप. नाउ फॉर द पार्ट ऑफ अब्रॉड, व्हाट इज द एक्रेडिटेशन सिस्टम वी यूजुअली सी इन अब्रॉड, दैट सच एज यूएसए वगैरह में क्या होता है. देयर वी हैव JCAO, that is Joint Commission on Accreditation Organization, NCAA, National Committee for Quality Assurance, AMAP, the American Medical Accreditation Program, AASC, or you can say URAC, that is the American Accreditation Healthcare Commission Utilization Review Accreditation Commission. Okay, now that is AAAHC, that is Accreditation Association of Ambulatory Healthcare. Nowadays ये QCI जो हमने इंडिया में पढ़ा, NABH पढ़ा, NABL पढ़ा, इनमें से सबसे फॉरमोस्ट सबको जो अप्लाई करते हैं वो NABH के लिए करते हैं. तो व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ NABH? एक ग्लिम्स है, ये आपको लिखने में और समझने में आसानी होगी. Whenever the question is asked to write an examination with the huge number of marks, you can elaborate these points. We are just touching those points here. Patient centered standards होते हैं, एसेस होगा, असेसमेंट होगा एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर होगी. केयर ऑफ पेशेंट कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा. ओके, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन प्रॉपरली विद टाइम ड्यूरेशन चार्ट विल बी देयर. पेशेंट राइट एंड एजुकेशन इज द फॉरमोस्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू. हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन इन द हॉस्पिटल. रेगुलर हॉस्पिटल क्लीनिंग होना, पेस्ट एंड माइट से दूर रखना, फ्यूमिगेशन होना हर रूम का. इफ सम पेशेंट्स जो डिवास्टेटिंग डिजीज से है ऑक्युपाइड, उसको फ्यूमिगेट करना उस रूम को. आर यू क्लियर टिल हियर? नाउ द सेकंड पार्ट व्हिच कम्स हियर, द ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड स्टैंडर्ड बियरर. अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे बियर करता है? बेसिकली इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, facility management and safety, human resource management and information management system. Okay, these are the 5 points which you need to understand when you go for an organization standard bearer. Now what are the future challenges for these kind of thing? जो हम काम कर रहे हैं इसका future challenges क्या है, आगे क्या होगा? It will lead to the technological boom, promotion for medical tourism. अब आपका नाम आपके देश में जब आपका फैल रहा होगा, इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे होंगे, आपका नाम, इवन दो यू आर सिटिंग इन योर ओन प्लेस, योर वेल एक्रेडिटेड बॉडी विल बी मूविंग हाई फ्लाई विद इन द बॉर्डर्स, क्रॉसिंग द बॉर्डर्स एंड रीचिंग दोज पेशेंट विच आर मोर प्रोन टू यू, जिनको आपके पास आना है, जिनका बजट आपसे मैच करता है और आप एक्रेडिटेड हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है इट विल प्रमोटिंग योर मेडिकल टूरिज्म. Accreditation of miscellaneous healthcare organization other than hospitals and part facilities, accreditation of clinical care, accreditation of healthcare organization providing alternative care, accreditation of public health sector care organization, cost escalation, care of unaffordable class, जो मैंने पहले बताया आपको, जो unaffordable class हैं वो आपसे करा सकते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा. In foreign, the bariatric surgery is more expensive rather than our India. So basically, your obesity pattern might influence other people living in other countries residing there to come to you and get appropriate treatment regarding their bariatrics. Okay, and it will definitely increase the trade. जब सब कुछ होगा आदान प्रदान, तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा? The trade, the medical trade which you will be going for, it will be improving you. So that's for today. In the accreditation, the main thing, let's recall for it. Accreditation, what is accreditation? Accreditation कुछ नहीं है भैया. It is normally the formal process by which a recognized body, NGOs assess and recognize healthcare that meets predetermined standards. Okay. 3 टाइप ऑफ एक्रेडिटेशन होते हैं अपने यहाँ पे, QCI, NABH, NABL. सो ये सारी चीजें यदि आप दिमाग में रखेंगे,
it will be very easy for you to cope up with that. That's for today. Signing off. Thank you. Take care.